ریڈیو پاکستان کراچی اسٹیشن کا تیار کردہ ڈرامہ سنیے، درد مشترک ہے اب۔ تحریر ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی۔ تو ڈرامہ سنیے، درد مشترک ہے اب۔ ہیلو ہیلو، جی کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ آپ ایاز صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں ایاز ہی ہوں، آپ کون صاحبہ؟ ایاز صاحب، میرا نام نگار ہے اور میں یونیورسٹی کی طالبہ ہوں۔ میں آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس سلسلے میں؟ دراصل میں آرٹس کونسل میں ادبی نشست میں آپ کو سن چکی ہوں، اور اس سے پہلے بھی آپ کا کلام پڑھتی رہی ہوں اور پسند کرتی ہوں۔ جی شکریہ۔ ادبی محفل میں آپ نے اپنی نظم درد مشترک میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا اور متاثرین کی بربادی کا جو غم میں ڈوبا ہوا نقشہ کھینچا، اس سے میں بہت متاثر ہوئی۔ میری نظم ہر مغموم دل کی آواز ہے محترمہ، وقت کی پکار ہے۔ ایاز صاحب، میں اس پکار پر لبیک کہتی ہوں اور آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ سیلاب زدہ لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک اور جلسہ آرٹس کونسل میں منعقد ہو رہا ہے۔ آپ ایسا کیجئے، وہاں تشریف لے آئیے، ملاقات ہو جائے گی۔ ملاقات تو میں آپ سے ادبی نشست میں بھی کر سکتی ہوں، مگر وہاں اطمینان اور یکسوئی سے گفتگو نہیں ہو پاتی۔ تو پھر اچھا ایسا کیجئے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کل شام 4 بجے میرے آفس آ جائیے۔ شکریہ ایاز صاحب، میں انشاءاللہ وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ ایاز، کیا بات ہے؟ آج کل تم آفس سے دیر سے آتے ہو، کیا کچھ زیادہ کام بڑھ گیا ہے؟ نہیں باجی، آفس کا کام نہیں ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے ہمارے وطن عزیز پر کیا آفت آئی ہوئی ہے، کتنا بھیانک سیلاب آیا ہوا ہے، کتنے در بدر لوگ پناہ کے لیے عارضی کیمپوں میں بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں پڑے ہوئے ہیں بیچارے۔ ہم وہاں ان کی دلجوئی اور مدد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہاں ایاز، ان کی حالت زار دیکھی نہیں جاتی۔ ریڈیو ٹی وی پر سیلاب زدگان کی قسمہ پرسی اور بیچارگی دیکھ کر یقین مانو دل آٹھ آنسو ہوتا ہے۔ ایاز، یہ تو بہت نیک کام ہے جو تم ان کی امداد کے لیے کچھ کر رہے ہو۔ میرے اور کومل کے کچھ کپڑے ہیں، وہ بھی لیتے جانا۔ جی باجی، میں اپنی شاعری میں زندگی کے دکھ اور غم بیان کرتا ہوں، اسی لیے مغموم تخلص بھی کرتا ہوں۔ کل میں نے ادبی محفل میں جب اپنے آفت زدہ بھائیوں کی مصیبت کا درد بھرا احوال اپنی نظم کی صورت میں پیش کیا تو باجی حاضرین کی داد ان کی سسکیوں میں ڈوب سی گئی۔ بھیا، تمہاری شاعری، تمہارے دل کی آواز اپنی جگہ، مگر وقت کی پکار ان لوگوں کی عملی مدد کے لیے تمہیں بلا رہی ہے بیٹا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں باجی۔ ویسے لوگوں نے میری نظم سے بہت زیادہ اثر لیا اور دل کھول کر چندہ جمع کیا۔ وہ تمام رقم ہم نے امدادی فنڈ میں جمع کرا دی ہے۔ ارے میرے بھیا، تمہاری بہن کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باجی، آپ اور میری کومل ہی تو ہیں میری دنیا۔ آپ نے تو ہمیشہ میرا اچھا ہی چاہا ہے۔ ایاز، ان کے انتقال کے بعد تم نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا نا، وہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ باجی ایسی باتیں نہ کریں، انسان کے بس میں کیا ہے۔ ارے اپنی کومل کہاں ہے؟ ابھی تک آئی نہیں میرے پاس۔ وہ کھانے پر تمہارا انتظار کر رہی تھی، پھر ناراض ہو کر کہنے لگی بڑے خراب ہیں میرے ماموں جان، مجھے اتنی بھوک لگی اور وہ آئی نہیں رہے۔ اچھا ہے کہاں؟ چلیے میں دیکھتا ہوں اسے۔ میں نے اسے سونے کو بھیج دیا ہے، اس کی وین بھی تو صبح صبح آ جاتی ہے نا۔ اچھا تم ایسا کرو، تم کھانا کھا لو، میں گرم کر دیتی ہوں۔ نہیں باجی، آپ بھی آرام کیجیے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہاں کیمپ میں بچوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر ہم نے کچھ کھا لیا تھا۔ تم لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے گئے تھے؟ جی باجی، بس صاف پانی کی بوتلیں، تندوری روٹیاں اور سالن وغیرہ۔ ماموں جان اٹھیں پلیز، مجھے اپنی بائک پر اسکول چھوڑ دیں، دیر ہو رہی ہے، جلدی اٹھیں نا۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ تمہاری وین نہیں آئی ابھی تک؟ ہاں ایاز، ڈرائیور کا فون آیا تھا کہ وین خراب ہو گئی ہے، واپسی پر وہ لے آئے گا۔ اوہو، اچھا بھائی، چلیے آپ کی خدمت تو کرنی ہی پڑے گی۔
मामू मैं आपसे नहीं बोलती, रात में कितनी देर तक आपके इंतजार में भूखी रही। हाँ भाई, कल देर हो गई थी। अच्छा चलो, तुम मेरी वजह से भूखी रही ना, तो आज शाम मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाने लेकर जाऊंगा। थैंक यू मामू, प्रॉमिस, पक्का वाला ना? पक्का प्रॉमिस। थैंक यू। अयाज साहब, आपसे कोई लड़की मिलने आई है। अच्छा, उन्हें रिसेप्शन में बिठाओ और कहो कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा, तो आप हैं निगार? जी निगार? जी, निगार अली। जी मोहतरमा निगार अली साहिबा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अयाज साहब, मुझे सिर्फ निगार कहें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, मग़मूम की शायरी से निगार दिल फिगार ज़रूर हो गई है। इसे मैं सताइश समझूं या फिर रंजिश? अयाज साहब, क्या ये बेहतर ना होगा कि हम ऑफिस के माहौल से बाहर कहीं इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकें? अगर आपको जहमत ना हो, मेरे साथ मेरे घर पर आप चलकर मेरी इज़्ज़त अफजाई फरमाएं। दरअसल मैं आपकी मुलाकात अपने पापा से करवाना चाहती हूँ, जिनकी इजाज़त से ही मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। आपके पापा कौन? चलिए ना, आपको मिलकर खुशी होगी। अच्छा चलिए, फिर आपकी ख्वाहिश और आपके पापा के एहतराम में चले चलते हैं। आइए आइए अयाज साहब। अयाज साहब, आपने पूछा था कि आपकी शायरी से मेरी दिल फिगारी को आप सताइश या फिर रंजिश समझी? जी चलिए बताइए। ये अपने अपने एहसास की बात है अयाज साहब। इकबाल ने भी क्या खूब कहा है, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। लिहाजा निगार साहिबा, अपने इस आला बद रफ्तार को सुबक रफ्तार में बदल दीजिए, इससे पहले कि कोई कुचला जाए। अयाज साहब, 2 दिन की ज़िंदगी है, अगर आहिस्ता खरामी से काम लिया तो दिल की ख्वाहिशें कुचल कर रह जाएंगी। इस सैलाब की तबाहकारियों को देखकर तो जिंदगी से एतबार उठ गया है। तो लीजिए, आ गया हमारा मकान। वाह, क्या कहने, जैसे मकीन वैसा ही मकान। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा शानदार घर है आपका। जी हाँ अयाज साहब, ये मेरे पापा की पसंद है। वो अपने ख्यालात, इल्म और अमल से भी इतने ही शानदार हैं। आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। और ये देखिए, मेरे पापा की नेम प्लेट चमक रही है। प्रोफेसर, अरे अरे निगार, आप प्रोफेसर अली अहमद की बेटी हैं? ये वही अली अहमद साहब है ना, जो रोशन चिराग चैनल ऑफ स्कूल्स के बानी प्रिंसिपल हैं? जी जनाब, मुझे अपने पापा पर फख्र है। और होना भी चाहिए भाई। तालीम और तरबियत में न सिर्फ उनका नाम रोशन है, बल्कि उनके स्कूल के सिलसिले ने तो मुल्क के कोने कोने में इल्म की शमा रोशन की है। तो आइए ना, आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ, उन्हें भी मिलकर आपसे बहुत खुशी होगी। और प्रोफेसर साहब को ये जानकर खुशी होगी कि मेरी प्यारी भांजी उन्हीं के स्कूल की तालिबा है। ये तो बड़ी खुशी और बहुत ही एजाज़ की बात है। कल तो उस स्कूल में सैलाब ज़दगान की मदद और उनके साथ यकजहती के इजहार के लिए एक फंक्शन भी हो रहा है ना? जी जी, मुझे मालूम है, बल्कि कोमल तो उसमें मदद के लिए अपील भी करेगी। पापा को बताऊंगी तो बहुत खुश होंगे। मुझे तो उन्होंने कई जिम्मेदारियां भी दे रखी हैं। प्लीज़ आप भी ज़रूर कोमल को साथ लेके आइएगा, और हाँ, अपनी बहन साहिबा को भी ज़रूर साथ लाइएगा। निगार, क्या ये बेहतर ना होगा कि मैं सबसे पहले आपके पापा की खिदमत में आदाब बजा लाऊं, यानी सलाम करूं और कुछ दुआएं ले लूं उनसे? ऐसा, मैं पहले आपको अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि एक मर्तबा अगर पापा से गुफ्तगू शुरू हुई तो वो बोला किए और हम सुना किए। पापा, पापा आप कहाँ हैं? देखिए, कोई आपसे मिलने आए हैं। बेटा मैं यहाँ हूँ अपने स्टडी में, आ जाओ। मैं आ गई पापा। बेटा तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि अकेली गाड़ी मत लेके जाया करो, और ड्राइवर को भी मैंने डांटा है कि बेबी को गाड़ी मत दिया करो। ड्राइवर साहब बेचारे क्या कर सकते हैं पापा, मेरे गुस्से को देखकर खामोश हो जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। मेरे अच्छे पापा, आइंदा ख्याल रखूंगी। बेटा यहाँ के बहंगम ट्रैफिक से खौफ आता है। अरे हाँ, तुम तो शायद अपने पसंदीदा शायर अयाज मगूम से मिलने गई थी, क्या हुआ, हो गई मुलाकात?
ہاں پاپا، نہ صرف میری ملاقات ہوئی ہے بلکہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں آپ کی یعنی کہ پروفیسر علی احمد صاحب کی صاحبزادی ہوں تو وہ مارے خوشی کے یا پھر مارے آپ کے روب کے وہ میرے ساتھ ہی تشریف لے آئے ہیں۔ بھائی تو پھر وہ ہیں کہاں؟ جاؤ انہیں یہیں لے آؤ، ادھر چائے وائے کا انتظام کرو۔ جی پاپا، میں ابھی ایاز صاحب کو بلاتی ہوں، وہ میری لائبریری میں ہیں۔ ہاں بلاؤ بلاؤ۔ آئیے ایاز صاحب، آئیے، یہ ہیں میرے پاپا۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام، آئیے جناب۔ ایاز، بلکہ ایاز مغموم، ادھر میرے قریب کرسی پر بیٹھ جائیے۔ جی بہت شکریہ جناب، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تعلیم کی ترویج کے سلسلے میں آپ کا نام تو پورے پاکستان میں عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، اور آپ کے روشن اسکولز کا نام تو ملک کے ہر صوبے کے ہر شہر میں ماشاءاللہ آفتاب کی طرح چمک رہا ہے۔ ایاز میاں، یہ سب تعلیم کی اہمیت سچی لگن، محنت اور خلوص کی بنا پر ہے، ورنہ کسی کی ذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میرا مشن ہے کہ ہماری اس پاک سرزمین کا بچہ بچہ علم سے منور ہو۔ روشن چراغ اسی لیے میں نے اپنے اسکول کا نام رکھا ہے۔ اور مجھے یہ بتا کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے پروفیسر صاحب کہ میری اکلوتی اور پیاری بھانجی آپ ہی کے اسکول کی طالبہ ہے۔ تو ایاز میاں، آپ اپنی بھانجی کی تعلیم سے پوری طرح مطمئن ہیں؟ جی سر، میں اسکول مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ میرے بہنوئی کا انتقال ہو چکا ہے تو انہوں نے کومل کی تعلیمی قابلیت کو بھی دیکھتے ہوئے اس کی فیس معاف کر دی۔ ارے بیٹی، تم کیا ہماری شکل دیکھتی رہو گی یا اپنے شاعر و ادیب کو کچھ چائے وائے پلاؤ گی؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ جی پاپا، میں فضلو کو کہہ دیا ہے، چائے آ رہی ہوگی۔ ایاز میاں، ہماری صاحبزادی تمہارے اشعار مجھے سناتی رہتی ہیں۔ ویسے تمہارا کلام واقعی اپنے پڑھنے والوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ تمہارا ہر شعر لگتا ہے کہ قاری کے دل کی بات ہے۔ تم دکھی انسانیت کی جس طرح مدد کر رہے ہو، جس طرح ان کے دکھ کو بیان کرتے ہو، واقعی وہ ایک دردناک حقیقت ہے۔ اس لحاظ سے تمہارا تخلص مغموم بالکل درست ہے۔ جی ذرا نوازی ہے آپ کی کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ ایاز میاں، تم سے ملنے کا اشتیاق اس لیے بھی بڑھا کہ آج کل ٹی وی پر خبروں کو دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ ہر رات ریڈیو پر خبروں کے بعد تمہاری نظم درد مشترک سننے کا موقع ملا۔ یقین مانو تم نے ہر درد بھرے دل کی ترجمانی کی ہے۔ جناب یہ لیجیے، چائے آ گئی۔ فضلو، ٹرالی ادھر لے آؤ اور تم جاؤ، میں چائے خود بنا لوں گی۔ پاپا آپ چینی تو لیں گے نہیں، اور ایاز صاحب آپ کو کتنی چینی ڈالوں؟ بیٹی، شکر کی مٹھاس کیا اثر دکھائے گی جب انسان اندر سے تلخیوں سے بھرا ہو۔ پاپا ہمارے اسکول میں جو جلسہ ہوگا اس میں ایاز صاحب کی چھوٹی بھانجی بھی حصہ لے رہی ہیں۔ ہاں بھائی، ویری گڈ، میں انشاءاللہ اس جلسے میں ضرور آؤں گا۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ جی ہاں، پروفیسر صاحب موجود ہیں، ہولڈ کیجیے گا، میں انہیں فون دے رہی ہوں۔ پاپا آپ کا فون ہے۔ جی فرمائیے۔ اچھا آپ ہے؟ جی مجھے یاد ہے، بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ انشاءاللہ 9-10 بجے تک ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں، میرے ساتھ میری بیٹی بھی ہوگی اور شاید کوئی اور بھی کلاس فیلوز ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ اطمینان رکھیں، سامان تو پیک کر لیا ہے۔ پاپا یہ کون تھے؟ ارے بیٹا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ہم ایجوکیشنل اداروں نے ایک امدادی کمیٹی بنائی ہے، کافی امدادی سامان جمع کر لیا ہے اور مختلف کیمپوں کو وزٹ کریں گے۔ تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ اور ہاں ایاز میاں، آپ بھی ایک دن چھٹی کر لیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ میں یقیناً اس نیک کام میں آپ کا ساتھ دوں گا پروفیسر صاحب۔ آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا تو میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ شکریہ۔ اچھا ایاز میاں، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، کل صبح انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہاں نگار بیٹا، تم ایاز کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دو تاکہ وہ ان کا گھر دیکھ لے اور کل صبح ان کو لے آئے۔ اچھا ایاز میاں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ایاز صاحب اگر آپ کچھ دیر اور بیٹھیں تو تازہ چائے کے ساتھ کچھ تازہ کلام نہ ہو جائے، کیا خیال ہے جناب آپ کا؟ نہیں، اب میں اجازت چاہوں گا، گھر پر اصل میں باجی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اچھا ٹھہرے، میں
ड्राइवर को बुलाती हूँ। बल्कि यही बेहतर होगा कि मैं आपके साथ चलती हूँ, आपकी बाजी से और आपकी भांजी कोमल से भी मुलाकात हो जाएगी, ताकि स्कूल के प्रोग्राम के बारे में कुछ हम डिस्कस भी कर लें। कोमल, कोमल, भाई कहाँ हो? देखो मैं आ गया हूँ। अरे मामू जान, ये आपके साथ कौन है? बड़ी प्यारी हैं। अरे आ गए तुम अयाज? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो बेटी तुम? इधर आओ, मेरे पास बैठो। अच्छा अब बताओ अपने बारे में। बाजी मैं बताता हूँ, ये प्रोफेसर अली अहमद साहब की बेटी हैं। अली अहमद? कौन अली अहमद साहब? माफ़ करना बेटी, मैंने पहचाना नहीं। ये आपकी बच्ची कोमल जिस स्कूल में पढ़ती हैं, मेरे वालिद उसके बानी प्रिंसिपल हैं और मेरा नाम निगार है। बड़ा प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारे नक्शो निगार की तरह। मैं आप और कोमल से मिलने चली आई ताकि स्कूल के उस होने वाले फंक्शन, यानी जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जलसा है, उसमें आपको शिरकत की दावत दूँ। हाँ हाँ, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। अयाज ने कोमल को तकरीर भी लिख कर दी है। अच्छा, मैं इजाज़त चाहूँगी। अच्छा निगार, ये बताओ कि तुम करती क्या हो और तुम्हारे कितने दूसरे बहन भाई हैं? मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मुझे अपने पापा पर फ़ख्र है कि उन्होंने तालीम की तरवीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अब वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में रोशन चराग स्कूल के बानी प्रिंसिपल भी हैं। अच्छा बेटी, अगर तुम खाना नहीं खा रही हो ना तो अपने साथ मेरे हाथ का बना हुआ ये गाजर का हलवा लेती जाओ, तुम्हें पसंद आएगा। शुक्रिया बाजी, और गाजर का हलवा तो मुझे बहुत ही पसंद है। आया साहब, कल सुबह मैं ड्राइवर भेज दूंगी, आप तैयार रहिएगा। बेटा निगार 9 बज चुके हैं, तुम तैयार हो? और वो आज़मिया आ गए? जी पापा, ड्राइवर उन्हें लेने गए हैं, बस आ ही रहे होंगे। लीजिए, वो आ गए। आइए आज़मिया आइए, आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आ गए। ऐसा है कि हम पहले इमदादी कमेटी के ऑफिस जाएंगे, वहाँ हमारे साथ कुछ और लोग भी शामिल हो जाएंगे। वहाँ जमाशुदा सामान है, खाने पीने की अशिया हैं, कपड़े हैं और दीगर इस्तेमाल की चीज़ें हैं। ये एक अलग वैन से हम इन कैंपों की तरफ भेज देंगे। अच्छा अच्छा, लेकिन प्रोफेसर साहब हम जाएंगे किन कैंपों की तरफ? आज हम जाएंगे सुपर हाईवे की तरफ, जो कैंप है वहाँ जाएंगे, जहाँ सुजावल, ठट्टा और बदीन और उसके इर्द गिर्द के जो मुतासरीन हैं, और जहाँ तक मुमकिन हुआ दूसरे मकामात पर भी जाएंगे। चलो बेटी, तुम अपना सामान रख लो। जी जी पापा। निगार, ये लो, ये बाजी ने कुछ खाने पीने की चीज़ें और कपड़े और दवाइयाँ भिजवाई हैं, ये भी रख लो। भाई अयाज़मिया, ये जो हमारी इमदादी कमेटी है उसकी इंचार्ज हैं और हमारे गुलशन इकबाल की जो ब्रांच है उसकी प्रिंसिपल हैं मिस रूही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अयाज साहब। प्रोफेसर साहब, सारा सामान गाड़ी में रख लिया है, बस आप लोगों का इंतज़ार था। आइए अब चलें। हाँ चलो भाई। रूही साहिबा, मैं और आप ख़वातीन से बातें करेंगे और पापा और अयाज मर्दों की देखभाल करेंगे। अब वो देखिए, उधर सड़क से हटकर लोग इशारों से हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। हाँ देखो ड्राइवर, पहले गाड़ी वहाँ ले चलो, बल्कि वहाँ जाकर रोक लो। मदद करे बाबा, बहुत मदद करे। अरे हमारी मदद करो, मदद करे बाबा, बहुत हमको भी दो, हमको भी दो। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। सबर करो। अरे पापा, अरे ये तो सब एक साथ इकट्ठा हो गए। बेटा, आप लोग हौसला रखें, मिलेगा, सबको मिलेगा। बेटा, सबको मैं मिलेगा। अपने बेटे के साथ पैदल अपने कच्चे घर से बाहर निकला। अरे हमारे घर की छत भी गिर गई थी ना। हाँ, हमारे सामने दरिया था, मेरा बेटा कश्ती लेने गया, फिर वापस नहीं आया। अच्छा अच्छा बाबा, मेरी बात सुने तो फिर आप एक इत्मीनान से मेरी बात सुने कि आप फिर यहाँ आए कैसे? मेरे को दूसरे गांव वाले अपने साथ लेकर आए हैं। निगार, जी जी। रूही साहब देखिए, वो उधर कैंप में एक नौजवान है जिसको लोगों ने डूबने से बचाया था। बेचारा कहता है उसके साथ सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी
वो कश्ती की तलाश में निकला था, लेकिन बेचारे की माँ का पता नहीं क्या हुआ है। कहीं वो लड़का उस बूढ़ी का बेटा तो नहीं? निगार, चलो अम्मा को सहारा देकर इस कैब पे ले चलते हैं। चले जल्दी चले। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बेटा मिल गया। मेरे बच्चों, हौसला रखिए, हौसला। कितना घबराए नहीं। सवाब देगा मेरी बच्ची। नहीं बाबा, हिम्मत से काम ले। अम्मा हिम्मत से काम ले। चलो, हिम्मत अल्लाह से ताला काम का लो। शुक्र है, बड़ा आसान है कि ये माँ बेटे मिल गए। हाँ निगार और आजमिया, जी। ये अच्छा हुआ कि हमने सबको कैंप में रखा। अल्लाह का शुक्र है, सारा सामान जो है वो ज़रूरतमंदों को मिल गया। जी जी पापा, सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे से मिलवा दिया। हाँ बेटा, हमें सिर्फ परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमसे ये काम लिया। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं अब चलूँगा। बाजी को सारी बातें बताऊंगा तो वो बहुत दुआएं देंगी। अच्छा निगार, कल स्कूल के इमदादी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। ज़रूर, इंशाल्लाह। ख़वातीन व हज़रात और रोशन चिराग स्कूल के प्यारे प्यारे तालिब इल्म साथियों, आज का ये जलसा हमने मुल्क में सैलाब की जद में आए हुए अपने हम वतनों की मदद के लिए रखा है। हाज़रीन व सामीन, इससे पहले कि मैं कोमल को बुलाऊं कि वो अपने मासूम अल्फाज से आप सबसे इमदादी दरख्वास्त करें, मैं इस स्कूल के बानी प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर अली अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो अपने ख्यालात से हमें मुस्तफीद करें। प्रोफेसर अहमद अली साहब। ख़वातीन व हज़रात और प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, मुझे खुशी है कि स्कूल के बच्चों ने आज का ये जलसा सजाया। हमारे वतन अजीज़ में गुज़िश्ता दिनों शदीद तूफ़ानी बारिशों के बाद बहुत भयानक तबाहकुन सैलाब आया हुआ है। दरियाओं के करीब और देही इलाकों का बेशतर हिस्सा सैलाब के पानी में डूब गया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, मवेशी मर गए हैं, हरे भरे तैयार खेत खलियान बर्बाद हो गए हैं। सैलाबज़दा लोग अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ खुले आसमान के तले जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में लाचार मजबूर लोगों को सहारा देना, रहने के लिए साया खुराक फराहम करना हमारा फर्ज है। कितनी बड़ी तादाद में बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं। इस सिलसिले में हमारे स्कूल की इंतज़ामिया ने एक अच्छा फैसला किया है। हम अपने स्कूल की 50 शाखों में, जो कराची से पेशावर तक हर छोटे बड़े शहर में मौजूद है, हर शाख में 5 बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। उनकी रिहाइश, खुराक और कपड़ों का भी इंतज़ाम मुफ्त फराहम किया करेंगे। ये 250 बच्चे वो होंगे जो वाकई अपने हालात और तालीमी शौक़ की बिना पर उसके हकदार होंगे। इस सिलसिले में आज इस ब्रांच ने ये प्रोग्राम पेश किया है। हम अपने प्रोग्राम को अमली जामा पहना सकें। हमारे साथ आज यहाँ एक पुरदर्द शायर अयाज मखमूम मौजूद हैं। सैलाब ज़दगान की यकजहती और उनसे अखुवत और मोहब्बत के इजहार के लिए इन्होंने एक बड़ी पुरअसर नज़्म बउनवान दर्द मुश्तरक कही है। मैं चाहूँगा कि वो उसे अपने दिल की आवाज़, वक्त की पुकार को आप तक पहुँचाएँ। आइए मखमूम साहब। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। हाज़रीन व सामाईन, मैं अपनी नज़्म दर्द मुश्तरक आपके सामने पेश करता हूँ। जी इरशाद आइए। दर्द ये मुश्तरक है अब, दर्द ये मुश्तरक है अब, दिल ये मुस्तरिब है अब। हर लम्हा जो संग चलता था, हमसे मिलकर दुख बनता था। उसने रुख यूं मोड़ा था, हमको तन्हा छोड़ा था। दर्द ये मुश्तरक है अब, दिल ये मुस्तरिब है अब। खेलते थे हम जिस दरिया किनारे, वक्त बिताए वक्त गुजारे। कैसे मंजर कैसे तारे, दरिया भूला रस्ते सारे। दर्द ये मुश्तरक है अब, दिल ये मुस्तरिब है अब। दर्द ये मुश्तरक है अब, दिल ये मुस्तरिब है अब।
हाथ में हाथ जो मिल जाए, हाथ में हाथ जो मिल जाए, एक जंजीर सी बन जाए। घर जब सबको मिल जाए, गम का बादल छट जाए। दर्द ये मुश्तरक है अब, दिल ये मुस्तरब है। दर्द ये मुश्तरक है अब। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अयाज मखमूम साहब। और अब मैं कोमल सिद्दीकी को बुलाती हूँ जो अपने मासूम अंदाज से आपसे मदद की दरख्वास्त करेंगी। कोमल सिद्दीकी। मैं आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। मैं हमेशा अपनी प्यारी अम्मी से कहती हूँ कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े। वो बड़े बड़े काम क्या हैं मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे प्यारे मामू जिनकी नज़्म अभी आपने सुनी, उन्होंने मुझे एक मुश्किल तकरीर लिख कर दी थी जो मैं भूल गई, मगर मुझे उनकी एक बात याद है। उन्होंने मुझसे कहा कि कोमल, आज तुम उन बड़े बड़े कामों में से सबसे बड़ा काम करने जा रही हो। आज तुम्हें स्टेज पर पूरी हिम्मत के साथ अपनी दिली आवाज़ के साथ सैलाब से मजबूर बच्चों के लिए उनकी तालीम के लिए चंदा जमा करना है। मैं आप सब अच्छे अच्छे लोगों से अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म की फ्रॉक को झोली बनाकर चंदे के लिए कह रही हूँ। मैंने अपनी इस ईद की सारी ईदी भी देने का फैसला किया है। अल्लाह ताला हमारे दिलों में मोहब्बत और रहम डाल दे, आमीन। बस करो मेरी बच्ची, बस करो। देखो तुम्हारी दर्दमंदाना दिली पुकार, देखो हमने कितना चंदा जमा कर लिया है। मौजूद हाज़रीन जलसा, आपके इस दिली हमदर्दाना जज्बे के तहत मैं सिर्फ ये कहकर इजाज़त चाहूँगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फयाज बेटे और निगार, अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोगों की मेहनत काम आई। बेशक। और कोमल बेटी ने तो सारी महफिल को रुला दिया है। काश हमारा यही जज्बा हमेशा कायम रहे। आमीन। आओ आज हम अहद करें कि हम हमेशा एक साथ एक कौम मिलकर इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दर्द मुश्तरक है अब ड्रामा आपने सुना। ये ड्रामा तहरीर किया था डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी ने। जिन सदाकारों को आपने सुना उनके नाम हैं काजी वाजिद, ज़हीन ताहिरा, जहरा शहजाद, बरकतुल्लाह, हसन काज़मी, मकबूल अली, अथर रज़ा अजनबी, सुहेल मुनव्वर, आसिफ इलियास, नादिया फातिमा रिजवी, इसबा अंसारी, मोहम्मद अदील, आगा जहांगीर और नज़मिया कलाम ग़ज़ाला रशीद। रिकॉर्डिंग अनवार हुसैन। सदाबंदी व तदवीन मोहम्मद नवाज। प्रोड्यूसर सीमा रज़ारिदा। पेशकश रेडियो पाकिस्तान कराची।